Good morning, children. Welcome to class 3 computers. Children, I welcome you all to your new class. From today, we are going to start our computer classes through online classes. As we know, children, due to increasing corona cases, we are not able to start our school. So, we will be having our classes without any interruption through online classes. So please children, attend your online classes as well as videos and come with your doubt in online classes. So children, here is our book IT Planet, My Bits and Bytes, Computer Series 3. Computer Series 2, last year we have studied from. Now as you are in class 3, we will be doing from Computer Series 3. So children, let's start. Children, before starting our first chapter, let us revise or recall what we have done in our previous video. So children, you have studied about computers in class 1 as well as class 2. So children, you have already studied about computers in class 2 and 1 and 2, and you know many things about computer. You have seen computer, you can identify different parts of computer, and you also know the use of these parts. But children, as you go to the higher classes, you'll be reading more about the same topics or the things which you have already studied. Similarly, here children, in this book also we will be covering almost same chapters but with little more information. So children, in our previous chapter we have studied about what is computer, then we have studied different types of computer, uses of computer, places where computers are found, and children, about different parts of computer. As we know children, computer is a computer system. It works in using different parts. For example, there are some parts of the computer which is very important, that is monitor, CPU, keyboard, mouse. Using all these parts, computer makes a system. Under this system, it performs several functions. Or we have also studied that computer is a smart machine, computer is a magic machine, computer is a kind of machine which performs a lot of work at a time, or it can do many works for us. As we know, computer is a machine and it is made by machine. We have also studied about the we have also compared a computer with human being, and we know that human has made this computer. As the man has made this computer, man is superior than computer, but computer is smarter than man as it works faster than man and it performs any work faster than man without making any मिस्टेक. तो कुछ जगहों पे जो कंप्यूटर है हमसे बेटर है और कहीं हम कंप्यूटर से बेटर है, लेकिन फिर भी as we have made it, we are superior or we are better than these, but these are smarter than human. कि हमसे स्मार्ट है क्योंकि हमसे जल्दी काम करते हैं, हमसे ज़्यादा याद रख सकते हैं, हमसे करेक्टली एक्यूरेटली काम करते हैं. So there are differences. So this also we have studied, and then we have studied about keyboard, the working of keyboard, the functions of keyboard, mouse, monitor, how to switch on and switch off computer, and we have studied about different storage devices also. कि whatever we do on the computer, we can store in the computer, as well as we can store it through some other external devices also, and how we can keep these informations or the work which we do on the computer safely using the hardware present inside the computer, that is hard disk present inside the computer, or through pen drive or CD from the computer इन एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट में भी हम रख सकते हैं, और इंटरनल स्टोरेज यूनिट जैसे कि हार्ड डिस्क में भी हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं. देन वी स्टडी 2 प्रोग्राम्स ऑल्सो, दैट इज नोटपैड एंड कैलकुलेटर, as well as
पेंट प्रोग्राम। सो चिल्ड्रन, अभी तक आपको कंप्यूटर ऑन करना भी आ गया, उसके सारे पार्ट्स को भी आप जान गए हो, अब तो आपने प्रोग्रामिंग करना भी सीख लिया है। तो चलिए कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें कुछ जो पढ़ी है उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी है, वी विल बी रीडिंग अबाउट दोज थिंग्स। सो आई होप चिल्ड्रन you are enjoying computer classes, and of course it is enjoyable क्योंकि it is somewhat something which you enjoy doing. So let us know more about computers through our chapters. So our first chapter, children, is about computer. So in this chapter, as you have studied in chapter class 1, what is computer, there also you studied, and in class 2 also you studied. In class 1 you studied computer is a magic machine or computer is a smart machine, and now then you studied in class 2 that it is an electronic machine. Now let us see what is given here. Once again, this is chapter 1. ये chapter 1 है, about computer. We'll be reading about computer. Chapter 1, about computer. Now the topics which we will be covering in this chapter is, children, what is computer, hardware, software, working of computer, how does a computer work, characteristics of computer, and uses of computer. So we are going to cover these topics in this chapter. Now let's meet Lappy. You people are already familiar with Lappy. You have spent your time with Lappy in class 1 also and class 2 also. Now in this class also, whatever information you are going to get in the book, children, will be through Lappy only. Lappy will be telling all about the computers in this book from time to time. तो एक बार फिर से आप लापी से मिलिए, और लापी आपको समय समय पे वो सारी चीज़ें बताएगा जो हमें जानना चाहिए. तो लापी सेज, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन. Now you are in new class. Let us learn some more interesting things about computer. So in last class also we have studied many interesting things about computer. Once again we are going to read some interesting things about computer. So here, children, our first topic is what is a computer. अब वही definition है लेकिन थोड़ा सा elaborate करके, तो it will be easier for you to understand क्योंकि हम पहले से जानते हैं that a computer is an electronic machine. इतना तो हमें पता है, that takes instructions from us and gives the result after processing. So children, as I have told you, using different examples also, giving different examples also, कि computer is a device which works or runs on a electricity. That is why you can say computer is an electronic machine. इसलिए हम इसको electronic machine. So children, computer is an electronic machine. Why it is an electronic machine? Because it runs on electricity. Electronic word कहाँ से आया है? Electronic word electricity से आया है. वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं. और मशीन आप सभी को पता है इज़ अ डिवाइस विच मेक्स आर वर्क ईजियर. तो यहाँ पे कौन से डिवाइस के बारे में हम बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ अ मशीन और इट इज़ अ डिवाइस विच मेक्स आर वर्क ईजियर. नाउ सो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन देन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस. अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी चेंज हुई कि एज वी नो कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क इटसेल्फ. ये इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड कि कंप्यूटर, व्हाई कंप्यूटर इज नॉट बेटर देन मैन. कंप्यूटर मैन से बेटर क्यों नहीं है? इवन दो इट इज़ वेरी स्मार्ट, इट डज एवरीथिंग एक्यूरेटली, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट बेटर देन मैन. व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट परफॉर्म अ सिंगल टास्क विदाउट अ ह्यूमन. अगर हम उसे स्टार्ट नहीं करेंगे तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा. अगर हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तो क्या कंप्यूटर अपने आप ऑन होगा? सो चिल्ड्रन, इफ़ यू जस्ट स्टार्ट नियर द कंप्यूटर, डज इट वर्क्स? विल इट वर्क? नो. तो सिर्फ उसके पास खड़े होने से या न खड़े होने से अपने आप वो काम नहीं करेगा, अनलेस और अनटिल यू स्विच इट ऑन और अनलेस और अनटिल यू
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, यू गिव इंस्ट्रक्शन, यू गिव, हमने इनपुट और आउटपुट लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था। इनपुट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी वर्क। जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसे काम करने के लिए देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। तो दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट and the instructions given by us are called input and the result which we get after processing, प्रोसेसिंग कहाँ होती है, CPU में होती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इस पूरे डेफिनेशन में एक तो है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके बाद हमने इनपुट का डेफिनेशन लिखा है और आउटपुट का डेफिनेशन लिखा है, जैसे कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस, instructions taken from us are input and gives out the result after processing is output. तो इन सब को मिला करके it becomes a computer. The whole thing makes a definition of computer only. So a computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing. So here children, that is why we can say a computer is a machine which takes instructions from the man and gives the result after processing. और processing कहाँ होता है, processing is done at the UPS, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट के बारे में भी बात किया और आउटपुट के बारे में भी बात किया। तो सारे इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू परफॉर्म एनी वर्क आर कॉल्ड इनपुट and the instruction and the result which we get after the processing is output. So this is another definition of computer children. You must learn it and learn the spellings also. तो आप इसको याद करना और स्पेलिंग, अब आप क्लास 3 में सिंपल तो लिख नहीं सकते हो कि इट इज़ अ स्मार्ट मशीन और इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यू हैव टू राइट कंप्लीट डेफिनेशन वेन एवर यू आर आस्क्ड टू राइट। जब भी आपसे पूछा जाता है आप ये पूरी डेफिनेशन कंप्यूटर की लिखेंगे। ओके, देन next topic is children, a computer works very fast. This also we know very well कि a computer is such a machine which works very fast and it also works very accurately. That means it doesn't make any mistake. It never makes mistake. ये कभी भी mistake नहीं करता unless or until you provide wrong information और कुछ गड़बड़ करते हो। अगर हमने जो इंस्ट्रक्शन देने में गड़बड़ की है उसकी वजह से ही वो गलती करेगा, वो अपने वर्किंग में गलती नहीं करता है। तो इट कैन डू मिलियंस ऑफ टास्क इन अ सेकेंड। अगर आप उसको मिलियंस ऑफ टास्क देते हो वो 1 सेकेंड में कर सकता है। सो है ना सुपर वंडरफुल मशीन। तो चिल्ड्रन, इट कैन परफॉर्म डिफरेंट डे टू डे टास्क like writing letter, doing calculation, making drawing, playing music, प्लेइंग वीडियोज़ एंड मेनी मोर वर्क। तो मतलब जो हमारा डे टू डे लाइफ के काम भी ये हमारे कर सकता है। अगर हमको कुछ भी लिखना है तो जब हम पेन से पेंसिल से लिखते हैं तो गलतियाँ करते हैं तो हमें पूरा पेपर फाड़ना पड़ जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऑप्शन है, हम गलती भी करते हैं अगर तो हम उसे डिलीट करके इरेज करके वापस कर सकते हैं। हमें वहाँ पे पेज वेस्ट नहीं होता, हमारी एनर्जी बार बार लिख करके वेस्ट नहीं। अब अगर हम कोई लेटर लिख रहे होते हैं उसमें बीच में कोई गलती होती है तो हम पूरे का पूरा लेटर हमको फिर से लिखना पड़ता है ना। तो इसीलिए, लेकिन जब हम कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमें जितना हमारा गलत है सिर्फ उसे इरेज करके या उस लाइन को इरेज करके या उस वर्ड को इरेज करके हम फिर से वही लेटर कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होता है, इससे हमारी एनर्जी बचती है, इससे हमारा रिसोर्स बचता है। रिसोर्स का मतलब है कि पेपर वेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी वेस्टेज नहीं है। और तो हुआ ना फ़ायदेमंद चीज़, अच्छी चीज़, बेनिफिशियल है हमारे लिए, इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। फिर कैलकुलेशंस करने हैं, कैलकुलेशन करने कभी कभी हमको बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं आते हैं तो हम कंप्यूटर के कैलकुलेटर को यूज़ करके ईजिली कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू डू कैलकुलेशन। लास्ट टाइम क्लास 2 में आपने कैलकुलेटर प्रोग्राम पढ़ा है। इट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू डू कैलकुलेशन। हमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन करना है तो हम आराम से कैलकुलेटर को यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक और काम हमारा आसान हुआ। देन मेकिंग ड्राइंग्स। अगर आपको ड्राइंग बनाना होता है चिल्ड्रन, व्हाट ऑल यू नीड फॉर मेकिंग अ ड्राइंग? यू नीड कैनवस और यू नीड पेपर, पेंसिल, कलर, इरेज़र, स्केल। देन यू नीड मूड भी चाहिए कि कब बनाना है कब नहीं बनाना है। कभी कभी अच्छी ड्राइंग्स बन जाती है और कभी नहीं बनती है। तो ये सारी चीज़ों को के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है।
लेकिन अगर हमें कंप्यूटर में ड्राइंग बनाना है चिल्ड्रन, इफ़ यू वांट टू मेक अ ड्राइंग इन a computer, can you name the program in which you can draw and paint? Can you name a program in which you can draw and paint? Just computer खोल के तो ड्राइंग नहीं करेंगे ना, we need a program. Yes, we need MS Paint program. Last year we have already studied in your class 1 also you have studied about paint program. So children, just by using a program you can draw as well as color. There also यू आर नॉट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ रिसोर्स ना, तो आपका पेपर वेस्ट हो। जब हम एक ड्राइंग कर रहे होते हैं, जब तक कि हम बहुत अच्छे ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, तब तक हम ड्राइंग करने में कितने पेजेस वेस्ट करते हैं। मम्मी हमेशा शिकायत करती है कि हम अपनी ड्राइंग बुक के पेजेस फाड़ डालते हैं या ड्राइंग बुक भर डालते हैं उल्टे सीधी ड्राइंग्स करके। लेकिन कंप्यूटर पर ड्राइंग करने में हमें किसी से डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इजीली नए पेज ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं होता। और उसके अलावा ना हमें पेंसिल की ज़रूरत है, ना हमें पेपर की ज़रूरत है, ना ही हमें कलर्स की ज़रूरत है। हम सिर्फ एक कंप्यूटर पे बैठ करके जो भी मन में आया वो ड्राइंग कर सकते हैं। और उसके अलावा चिल्ड्रन, बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पेंट प्रोग्राम, बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। और जो वो ड्राइंग्स, क्योंकि हमारे पास टूल्स में शेप्स भी होते हैं, तो हम कुछ शेप्स नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन यहाँ पे शेप्स को यूज़ करके हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ड्राइंग भी इजीली बना सकते हैं और उसको कलर भी कर सकते हैं। और अगर हमको कलर नहीं पसंद आया तो हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अब क्या, आप ड्राइंग पेपर में जब आप ड्राइंग बनाते हो तो कलर चेंज कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। एक बार ड्राइंग कर दिया तो वो ख़राब हो जाती है। अगर हमको दूसरा कोई कलर करना है तो एक कलर के ऊपर दूसरा कलर कभी चढ़ता है? कैन यू रिप्लेस अ कलर विद अनदर कलर? नो। सो बट ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे मम्मी भी नहीं डांटेगी और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी हम नया पेज ले लेंगे या उसे इरेज कर देंगे। ठीक है, तो इन दिस वे चिल्ड्रन इट इज़ मोर कन्वीनियंट देन द पेपर और पेंसिल ड्राइंग। वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। हम आराम से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं और आराम से उसको इरेज कर सकते हैं, या फिर सेव कर, अच्छी बनी तो सेव करके रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और जब हम इसमें सेव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना तो वो ख़राब हो सकता है ना खो सकता है, आराम से उसमें कंप्यूटर में सेव रहेगा। देन प्लेइंग म्यूज़िक, गाना भी सुन सकते हैं। इफ़ यू आर बोर्ड ऑफ डूइंग योर होमवर्क, और पूरे दिन पढ़ करके इफ़ यू आर टायर्ड, यू कैन relax yourself, you can fresh your mood, you can change your mood, you can refresh yourself by listening to the music. कभी कभी हम थक जाते हैं तो म्यूज़िक सुन करके अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द कंप्यूटर। देन प्लेइंग वीडियोज़, आप वीडियोज़ प्ले कर सकते हो, और उसके बाद आप शादी के कैसेट, बर्थडे के वीडियोज़ सारे इसके थ्रू देख सकते हो। सो चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक machine that takes instructions from us and gives the result after processing. So computer is an electronic machine. Electronic means something which runs on electricity. फिर उसके बाद it cannot perform anything itself. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग इटसेल्फ, इट नीड्स आर हेल्प। हमारे इंस्ट्रक्शंस की, हमारे इंस्ट्रक्शंस की इसे ज़रूरत होती है। विदाउट आर इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क, एंड आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन इट गिव्स रिजल्ट ऑल्सो। जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमारे वर्क का आउटपुट चाहिए, दैट ऑल्सो वी गेट। सो इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट एंड द रिजल्ट वी गेट इज output. So a computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing. Then a computer works very fast. It can do millions of tasks in a second. It's really wonderful, children. Millions of tasks in seconds. It can perform different day-to-day tasks like writing letters, doing calculations, making drawings, playing music, playing videos, and many more works can be done using the computer. तो ये सारी चीज़ें तो हम अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन घर के बाहर स्कूल्स में, ऑफिसेज में, शॉप्स में, मॉल्स में, हर जगह आजकल आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, और हर जगह अलग अलग काम these computers do. Now
Here are different types of computer. So here you can see two different types of computer about which you have studied in your previous chapter. आपने अपने previous chapter में भी पढ़ा है that laptop. What do you mean by laptop, children? Laptop means something which can be easily or conveniently fits on our lap or can be kept on our lap. तो आप सभी ने लैपटॉप देखा होगा, आपके घर में किसी ना किसी के पास, भैया के पास, दीदी के पास, पापा के पास, मम्मी के पास या चाचा के पास, किसी न किसी के पास, या मासा मासी दीदी बुआ, सब किसी के पास लैपटॉप होगा। आपने कहीं ना कहीं लैपटॉप देखा हो सकता है आप ही के पास हो, आप ऑनलाइन क्लास लैपटॉप से करते हो, वीडियोस लैपटॉप से देखते हो। सो नाउअडेज इट इज़ वेरी कॉमन इन यूज, कॉमनली इट इज़ कॉमनली यूज्ड। अधिकतर लोग इसको यूज़ करते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास के लिए या ऑफिस पर्पस के लिए, तो बहुत कॉमन हो सकता है। लास्ट 1 ईयर से तो लैपटॉप और स्मार्टफोन्स बहुत ही कॉमन, हर एक घर में आपको मिल जाएगा। तो दीज आर द type of computer, children. These laptops are one of the computer only which are made such that it can fit conveniently on our laps wherever you feel like doing any work. आप इसको कहीं लेकर के जा रहे हो, actually it is light in weight and can be transported from one place to another, can be carried from one place to another, so that you can do any work anytime. आप जर्नी भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आपको काम करना है, आप आराम से बैठ के कर सकते हो। आपको घर का काम स्कूल में करना है, स्कूल का काम घर में करना है, घर का काम ऑफिस में करना है, लाइक ऑफिस का काम घर में करना है या ऑफिस में करना है, आप कहीं पे भी लैपटॉप पे या कहीं चलते फिरते भी आप बैठ करके, सो चिल्ड्रन easily you can work on laptops. Now children, another type of computer is desktop. Desktop भी नाम से you can understand it can be kept on the desk. डेस्क छोटा सा टेबल होता है जिसपे हम इजीली इसको ऊपर रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन स्कूल्स और होम्स, शॉप्स। छोटे मोटे काम के लिए, छोटे मोटे जगहों पे, सारी जगह इस टाइप के कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं। तो दीज कंप्यूटर्स आर वेरी कॉमन टू यू ऑल. You must have seen these in your school also, in your school lab also, and these have different parts, children. You can see you very well know about each part क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. So here children, this is monitor, this is keyboard, this is CPU, and then this is a mouse. So these are the different parts of computer, and without any of these it cannot perform a work. So इस पूरे को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, और ये सब कोई ना कोई काम करते हैं और सब मिल करके किसी एक काम को किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं. सो दीज आर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. ये घर में भी हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं. दिस कैन बी फाउंड इन ऑफिसेस, मॉल्स, स्मॉल शॉप्स, कैंटीन्स. इन सब जगहों पे दीज कंप्यूटर, बैंक्स, हॉस्पिटल्स में ये सारे कंप्यूटर्स आर फाउंड. नाउ चिल्ड्रन, update your knowledge. Here the topic is update your knowledge. A computer is an electronic machine that accepts data. अभी मैंने आपको बताया accepting data और taking the instruction is called input. अभी ऊपर आपको मैंने बताया ना कि getting instructions from us is nothing but accepting the data, और this is called input. इसे हम input कहते हैं. उसके बाद manipulates the data according to specified रूल्स. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है. जिस तरह की ज़रूरत होती है उस हिसाब से डाटा को यूज़ करके इट डज द वर्क, और इस पूरे वर्किंग को हम प्रोसेस कहते हैं. कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है. जैसी हमारी ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू दैट वी डू द वर्क एंड गेट द रिजल्ट. तो डूइंग द वर्क, द प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड प्रोसेस. और उसके बाद procedures produces result is called output, और उसके बाद at the end the result which we get is called output. इस पूरे एक्टिविटी के बाद जो रिजल्ट हमको मिलती है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमको फाइनल मिलता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. सो चिल्ड्रन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. Now stores the result for future use.
computers work on the principle of input, process and outing. अब second thing is children कि it does very fast, it does any work very fast, किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है और उसके बाद accurately करता है और उसके बाद बहुत सारे काम करता है और बहुत सेकेंड्स में मिलियंस ऑफ वर्क्स टास्क कर सकता है. टास्क मीन्स वर्क. बट चिल्ड्रन इसके अलावा इट कीप्स all these information stored inside itself for future use. हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि वो कहीं हम सेव करके रख रहे ताकि उसी काम को हमें दोबारा ना करना पड़े, हम उसी काम को रीयूज़ कर सकें. तो ये सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कंप्यूटर का कि वॉट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर कैन बी सेव्ड, स्टोर्ड और स्टोर्ड सेफली इनटू द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज़. तो जो भी हमने output we get output or we get result can be saved, can be stored into the computer for future used. So this is one of the benefits of the computer. अब computer works on the principle यानी सिद्धांत of input, process and output. हम उसे कुछ instructions देते हैं, वो instructions को हम data कह सकते हैं. We can call it as data, we can call it as instruction. And this instruction is processed where? Processed by the CPU. And after being processed we get the output. उसको प्रोसेस करने के बाद जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हम रिजल्ट कहते हैं या फिर आउटपुट कहते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. यू कैन से दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर. पहले वो इंस्ट्रक्शन लेता है इनपुट के फॉर्म में, उसको प्रोसेस करता है, देन गिव्स अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस मीन्स डूइंग वर्क, उस इंस्ट्रक्शंस को काम के थ्रू रिजल्ट में बदलना इज प्रोसेस, एंड द रिजल्ट इज आउटपुट. तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें आउटपुट चाहिए. हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटपुट. तो हियर वी वांट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर and this output or result we get in the form of output. So input data और instruction. क्योंकि किसी भी काम करने के लिए चिल्ड्रन we have to provide data और डिटेल्स हमको देनी पड़ेंगे. मैंने बहुत बार आपको बताया कि जब भी हम रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट बनाते टाइम हम मार्क्स नहीं देंगे, बच्चों के नाम नहीं देंगे, क्लास नहीं देंगे, तो रिजल्ट किसका बनेगा? कंप्यूटर कहाँ से लाएगा? तो वी प्रोवाइड द डाटा. अब इस डाटा को लेके बच्चों का रिजल्ट बनाता है, प्रोसेसिंग होती है, रिजल्ट बनता है, उसके बाद जो हमें रिजल्ट फाइनल मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. तो यहाँ पे जो भी काम कंप्यूटर कहता है हमारे डाटा के बेसिस पे करता है और उसी को मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करता है और फिर डाटा के अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस करके फिर हमें आउटपुट देता है. सो दिस इज़ द कंप्लीट वर्किंग ऑफ अ computer. So children, here these are the things which we have already studied, but let's update your knowledge that the instructions given to the computer is called input. Input का मतलब होता है data और instruction या information which we give to the computer to do any work is called input, and this input is manipulated according to the need. जैसी ज़रूरत है, जैसा काम है, जैसा रिजल्ट देना है, उसके हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके को मैनिपुलेट किया जाता है एक स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से, और उसके बाद द रिजल्ट और द जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिजल्ट और इट इज़ एन आउटपुट. जो भी हमें इसके बदले में मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं. सो द कंप्लीट साइकिल इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. आई होप चिल्ड्रन you all must have understood. So children, let's revise whatever we have studied in this on this page. So chapter 1, that is about computer. So we have studied, we met Lappy once again, and Lappy says computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing. So children, you can see different machines in your house. As we know, washing machine, television, all these machines do one or the other work for us, and it makes our life easy.
and it works on electricity, runs on electricity. So these all are electronic machine. Similarly, computer also needs electricity to work. That is why it is also known as electronic machine. इसलिए हम इसको भी electronic machine कहते हैं. अब इसके बाद ये हमारे लिए बहुत सारे काम करता है और ये हमारे लिए बहुत सारे जो भी काम करता है वो बहुत करेक्टली करता है और इन सेकेंड्स करता है. सो चिल्ड्रन, whatever instructions we give to the computer is called, to perform any work, is called input, and the result which we get from the computer is called output. So this is the working of computer. And now we have different types of computer. For example, laptop, desktop. These two are the computer, are used at different places as per their need and requirement and the type of work we do. अगर हमको एक ही जगह पे काम करना है, कंप्यूटर को इधर से उधर नहीं लेके जाने की ज़रूरत है, तो वी यूज़ डेस्कटॉप, वी हैव डेस्कटॉप. अगर हम ऐसा काम करते हैं जहाँ हमें रोज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो हम वहाँ पे लैपटॉप का यूज़ करते हैं. उसके बाद चिल्ड्रन, द सेम थिंग विच वी स्टडीड अबाउट द कंप्यूटर. A computer is an electronic machine that accepts data. Data is input and manipulates the data according to the specific rule, and the result we get is called output. And the complete process of the working of computer is input, processing, output. So children, this is what we studied today in this class. Go through the chapter, learn the spellings, and come with your doubts in online team class. Online team class, there we will be discussing. So please watch videos. I end this video with this. We will meet once again in our next video. Till then, thank you.